Hey guys, hope you all are doing well. So today we'll start with our topic, fourth ventricle of brain. In our previous lecture, I have taught you about the third ventricle of brain, and I told you that fourth ventricle, third ventricle comes as a 15 marker question in your anatomy exams. So let's get started with our fourth ventricle. Before starting the fourth ventricle, how do you have to attempt this question in a 15 marks? So, first of all, you have to define what is basically ventricle, give the definition of ventricles, the basic functions of ventricles, then start about with a diagram, neat and label diagram about the location of the ventricles, the lateral ventricle, the third ventricle, and the fourth ventricle. Where are they basically located according to the diagram? Then, if it comes as a 15 marker question on fourth ventricle, suppose. So you have to start by defining the fourth ventricle, then write about the boundaries and the parts. Explain all the parts like the lateral boundaries, the floor, the roof, and the cavity of the fourth ventricle. Fine. And with a neat and label diagram, you have to explain each and every part. Then, uh, after explaining all the parts, write about the angles, write about the recesses, write about the features of the floor, features of the roof of the fourth ventricle. Fine. Then, last of all, if there is any clinical anatomy which is related to any of the 15 marker question, you have to write about that. So let's get started with our fourth ventricle. So you should know that there are three ventricles of brain. Okay. First are the lateral ventricles, middle one is the third ventricle, and the last portion is your fourth ventricle of brain. So what are basically ventricles? So these are your lateral ventricles, the third ventricle, and the tent-shaped cavity, which is the fourth ventricle of brain. So what happens is the ventricle are a set of communicating cavities within the brain. Fine. So these are the cavities जो हमारी brain के अंदर present होती है, which are basically responsible for the CSF production, the CSF removal, and CSF transport. Now, today we will study about this tent-shaped cavity, which is known as the fourth ventricle. So what is basically fourth ventricle? It is the cavity of hindbrain, which is a tent-shaped cavity. Fine. And it is present between the pons and the medulla in front. Dorsally हमारा pons and medulla present होता है fourth ventricle के, and behind to the fourth ventricle there is cerebellum. Fine. So अब हम इसको from the diagram study करते हैं. So this is basically the fourth ventricle. आपको दिखाई दे रहा है कि इसका स्ट्रक्चर एक टेंट शेप कैविटी की तरह है. फाइन. जिसके बिहाइंड वाली साइड हमारा, बिहाइंड मीन्स वेंट्रल साइड पे हमारा सेरिबेलम प्रेजेंट है. फाइन. और इसके इन फ्रंट पोर्शन पे हमारा पॉन्स, और नीचे वाले पोर्शन में अपर पार्ट ऑफ मेडुला जो है वो प्रेजेंट है. ये इन फ्रंट स्ट्रक्चर है और ये बिहाइंड स्ट्रक्चर है. फाइन. सो इट्स अ टेंट शेप्ड कैविटी. फाइन. इट इज अ कैविटी ऑफ द हाइंड ब्रेन जिसके जो प्रेजेंट है बिटवीन द सेरिबेलम ऑन द बैक साइड and pons and upper part of medulla in front. Fine. Now let's study about the parts of the fourth ventricle. So there are basically four parts of fourth ventricle. First, the lateral boundaries, then the floor, then roof, and the cavity. Moving on to the lateral boundaries of the fourth ventricle. Now, there are two types of lateral boundaries. एक है inferior lateral जो inferior side पे है, और एक है superior lateral जो superiorly present होती है. Let's study our lateral boundaries from this diagram. Now, I have told you कि हमारी एक superior boundaries है और एक हमारी inferior boundaries है. अब lateral boundaries होती है ये, जहां मेरा pointer, where my pointer is pointing, these are the lateral boundaries. So, superior laterally हमारा जो क्या है, सुपीरियर लैटरली हमारे ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स. फाइन. सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स. ठीक है, ये होता है हमारा सुपीरियर लैटरली. नाउ कमिंग ऑन टू द इंफीरियर लैटरल पार्ट्स. सबसे पहले हमारा जो सबसे इनसाइड मोस्ट पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट है, दैट आर द दीज वन, ग्रिसाइल fasciculus एंड ग्रिसाइल ट्यूबरकल. ओके. देन आउटर उसके है ग्रिसाइल के, दैट इज क्यूनिएट fasciculus एंड क्यूनिएट ट्यूबरकल. ये दोनों
अंदर वाला ग्रिसाइल हो गया, बाहर वाला क्यूनिएट हो गया, एंड इसके बाहर ये जो स्पेस आपको दिख रही है, ठीक है, विच इज द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। फाइन। तो सुपीरियर लैटरली, सुपीरियर ये हमारी लैटरल बाउंड्रीज थी, ठीक है। तो सुपीरियरली हमारे ये पेडंकल्स आ गए, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, एंड इंफीरियर लैटरली हमारी ये तीन चीजें, ग्रेसाइल, क्यूनिएट एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। फाइन। सो यही मैंने लिखा था इसमें। नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। अब हमें पता होना चाहिए ये होता है हमारा फ्लोर। फाइन। ये हमारा फ्लोर है फोर्थ वेंट्रिकल का, जिसके इन फ्रंट पोर्शन पे हमारा पॉन्स एंड अपर पार्ट ऑफ मिडला है, ठीक है, और हमारा बैक पोर्शन में सेरिबेलम है। सो टॉकिंग अबाउट द फ्लोर, फ्लोर बेसिकली क्या है यार? फ्लोर ये जो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये जो आई टोल्ड कि ये तुम्हारी बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज के अंदर वाला जो सारा आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज बेसिकली द फ्लोर। तो फ्लोर इज बेसिकली रोम्बॉइडल शेप, फाइन, विच इज कॉल्ड द रोम्बॉइडल फोसा, ठीक है। फ्लोर जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय, आई टोल्ड यू कि उसके जो पोस्टीरियर तुम्हारा जो पार्ट है, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पॉन्स, ऑब्वियसली बात है ना, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पॉन्स बोला है मैंने। पोस्टीरियर पार्ट कैसे हुआ? सी, ये पॉन्स है तुम्हारा और ये अपर पार्ट ऑफ मेडला है, तो जो इसका बैक पोर्शन है, मतलब इस पॉन्स का पोस्टीरियर पार्ट है, वो जुड़ता है फ्लोर के साथ, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पॉन्स हुआ। तो मतलब कि हमारा जो पॉन्स है और जो हमारा मेडुला का अपर पार्ट है, दैट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ दिस फ्लोर, और हमारा सेरिबेलम इसके बैक साइड पे है। फाइन। फ्लोर जो है उसकी कुछ लेयर्स होती है, एपेंडाइमा है, थिन लेयर ऑफ न्यूरोग्लाया है, एंड ग्रे मैटर की लेयर होती है। फाइन। तो हमने बताया कि कुछ हमारी लेटरल बाउंड्रीज हमने बताई थी, सुपीरियर एंड इंफीरियर। उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्लोर कि हमारा एक रोम्बॉइडल सा शेप होता है फ्लोर का, जिसको हम फोसा, रोम्बॉइडल फोसा कहते हैं, ठीक है, जिसके आगे वाली साइड पे तुम्हारा पॉन्स, जिसके आगे वाली साइड पे तुम्हारा ये पॉन्स और मिडला है, और पीछे वाली साइड पे तुम्हारा सेरिबेलम है, ठीक है। फिर तुम्हारा आ जाता है, लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द फ्लोर। अब मैंने कहा कि ये जितनी भी तुम्हें इसके अंदर की कैविटी दिख रही है, रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है, ये सारा, ये तुम्हारा फ्लोर है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्लोर इन डिटेल। तो पार्ट्स ऑफ फ्लोर में ये बताया हुआ है कि जो फ्लोर है, ठीक है, उसमें तुम्हारा एक तुम्हारा अपर ट्राइंगल हो जाएगा, ये वाला, और एक तुम्हारा तुम्हारा ये इंफीरियर ट्राइंगल हो जाएगा, और एक तुम्हारे इंटरमीडिएट ट्राइंगल्स के पार्ट होते हैं। फाइन। फीचर्स ऑफ फ्लोर में ये बताया गया है कि तुम्हारे कुछ सर्टन पार्ट्स है फ्लोर के जो कंप्लीट फ्लोर जो है वो फॉर्म करता है। सबसे पहले हमारा आ जाता है डॉर्सल, डॉर्सल मीडियन सर्कस, विच डिवाइड्स, जो हमारा ट्राइंगल है दो हाफ्स में उसको डिवाइड करता है। दिस इज योर, ये जो तुम्हें लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज योर डॉर्सल मीडियन सर्कस। ये तुम्हारा जो ट्राइंगल है उसको बेसिकली दो हाफ्स के अंदर, ये जो दो हाफ्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उसमें डिवाइड करता है। फाइन। Then is your sulcus limitans. It divides these two halves into the median eminence and the vestibular eminence. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, क्या बताया मैंने, कि there is your sulcus limitans. Fine. अब ये तुम्हारा sulcus limitans है, this portion, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा sulcus limitans है, ये हमारा, ये जो ट्राइंगल को हमने डिवाइड किया था, ये हमारा ट्राइंगल को फर्दर टू पार्ट्स में, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक तुम्हारा ये जो बाहर वाला एरिया है, विच इज द, ये बाहर वाला जो एरिया दिख रहा है, दैट इज द वेस्टिबुलर एरिया। फाइन। और एक तुम्हारा ये अंदर वाला हिस्सा जो तुम्हें दिख रहा है, दिस इज द मीडियल एमिनेंस। फाइन। सो बेसिकली हमने दो सल्कस पढ़े, दो लाइंस पढ़ी है, ठीक है, जो हमारे पूरा फ्लोर को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दो ट्राइंगल्स में बेसिकली बांट रहा है। एक हमने ये मीडियन सल्कस की बात करी, जो हमारा पूरा फ्लोर को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। फिर ये जो दो ट्राइंगल्स हमने पूरे डिवाइड करे थे, उनको भी फर्दर एक सल्कस है, विच इज द सल्कस लिमिटेंस। ये सल्कस हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक तुम्हारा अंदर वाला हिस्सा, ठीक है, जो तुम्हारी मीडियल एमिनेंस है, और एक तुम्हारा बाहर वाला एरिया, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, ये बाहर वाला एरिया जो कि हमारा वेस्टिबुलर एरिया। फाइन। ये दो हो गए तुम्हारे पार्ट्स ऑफ फ्लोर मेन। उसके बाद है सल्कस लिमिटेंस, ठीक है, जो हमारा ट्राइंगल को मीडियन एमिनेंस और वेस्टिबुलर एरिया में डिवाइड कर रहा था, वो हमारा उसके एंड्स पे, बेसिकली एक क्रेनियल एंड पे और एक कॉर्डल पार्ट पे हमारा क्या होता है, डिप्रेशंस होते हैं।
फाइन, हियर आर द डिप्रेशंस, ये तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे डिप्रेशंस, ठीक है। तो ऊपर वाले जो डिप्रेशंस तुम्हें ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, ये तो दीज आर कॉल्ड द सुपीरियर फोबियाज, एंड ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ब्लैक ब्लैक इंफीरियर पोर्शन पे, दीज आर द इंफीरियर फोबियाज। फाइन, मूविंग ऑन टू द मीडियन एमिनेंस। अब हमने कहा था, ये हमने पार्ट, ये हमारा पूरा पार्ट जो था दैट वाज मीडियन एमिनेंस, ठीक है। ये सल्कस बाहर वाला जो था हमारा सल्कस लिमिटेंस था, ठीक है। सल्कस लिमिटेंस जो था दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था हमारे फ्लोर को, एक ये वाला पूरा पोर्शन जो तुम्हारा मीडियन एमिनेंस था, और उसके बाहर वाला जो पोर्शन था दैट वाज आवर वेस्टिबुलर एरिया, है ना। तो मीडियन एमिनेंस हम पूरा अब एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में कि मीडियन एमिनेंस हमारी होती क्या है। सो मीडियन एमिनेंस इज बेसिकली एक एमिनेंस है जो ऊपर वाले पोर्शन से इट इज वाइडर अबव एंड धीरे धीरे इट ग्रेजुअली नैरोज बिलो। फाइन, नाउ इट ऑल्सो हैज एक जैसे हमने पिछले में बताया था कि एक डिप्रेशन होते हैं ब्लैकिश कलर के, सो इट हैज ऑन द वाइडर एंड्स इट हैज locus coeruleus which are the depressions. These locus coeruleus which you can see in black color are basically blue in color, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंटेड न्यूरॉन्स विच हैज सब्सटैंशिया फॉरोगिनिया। फाइन, तो बेसिकली ये लोकस कॉरिलस है, जो डिप्रेशन है इनको लोकस कॉरिलस कहा गया है, एंड इट इज ब्लू इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंटेड न्यूरॉन्स। फाइन, अब इस मीडियन एमिनेंस के अंदर हमारे दो तुम्हें सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे। फाइन, दीज सर्कल्स आर बेसिकली, these circles are called the facial colliculus. Fine, ये facial colliculus है। नाउ कमिंग ऑन टू ये जो हमारा मीडियन एमिनेंस तुम्हें दिख रहा था, ठीक है। अब मीडियन एमिनेंस हमने बताया कि मीडियन एमिनेंस से नीचे ये तुम्हें दिख रहा होगा, जब ये नैरो बिलो हो रहा है तो दो लेटरल लाइंस आ रही हैं, ठीक है। ये जो सल्कस है जो लेटरली रन कर रहा है, फाइन, ये सल्कस ना हमारा जो फ्लोर था जो मीडियन एमिनेंस है उसको ना दो ट्राइगोन्स ट्राइंगल्स में बेसिकली डिवाइड कर देता है। सी है, ये हमारा सल्कस आ रहा है, ठीक है। सल्कस इज लर्निंग लेटरली, ये सल्कस जो है ये हमारे दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, दो ट्राइगोन्स बना देता है। सो ऊपर वाला जो ट्राइगोन तुम्हें दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड द हाइपोग्लॉसल ट्राइगन। फाइन, और जो इसका नीचे वाला पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड द वेगल ट्राइगोन। सो हम डायग्राम के से समझते हैं इसको। आई टोल्ड यू कि हमारा ये पार्ट है, ठीक है। ये हमारा लेटरल सल्कस जो है वो रन कर रहा है, जो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है, दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। ओके, इसको कहते हैं ऊपर वाले को हाइपोग्लॉसल ट्राइगोन, एंड जो ये वाला पार्ट है दैट इज नोन एज द वेगल ट्राइगोन। फाइन, अब तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ये डिप्रेशंस हैं विच आई नेम्ड इट एज द इंफीरियर फोबिया। ये ऐसा लगता है इसका जो स्ट्रक्चर है दैट लुक्स एज इफ इट इज द निब ऑफ अ राइटिंग पेंसिल, ठीक है। इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। फाइन, यही मैंने इस डायग्राम में बेसिकली समझाया हुआ है। फाइन, अब नाउ कम्स की देयर इज बेसिकली अ स्पेस और एन एरिया यू कैन से, ठीक है, बिटवीन दिस वेगल ट्राइगोन एंड द ग्रेसाइल ट्यूबरकल। दिस स्पेस इन बिटवीन is known as the area postrema, fine, which functions as chemoreceptor. Area postrema, ये कह रही हूं मैं। सो बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया, इसके बीच में जो हमारा वेगल ट्राइगोन है और जो हमारे ये ग्रिसाइल ट्यूबरकल्स तुम्हें दिख रहे हैं, इनके बीच में यहाँ पे वेयर माई पॉइंटर इज राइट नाउ, द स्पेस इज नोन एज द एरिया पोस्ट्रेमा। फाइन, सो दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि हमारे जो निब ऑफ राइटिंग पेंसिल जैसा लग रहा था तुम्हें, कि ये तुम्हारे जो वेगल ट्राइगोन्स थे और ऊपर वाला जो तुम्हारे डिप्रेशंस थे विच वाज द इंफीरियर फोबिया, इट लुक्स लाइक अ निब ऑफ द राइटिंग पेंसिल। इसको दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द कैलमस स्क्रिप्टोरियस। फाइन, let's move on to the next part which is called the roof of the fourth ventricle. So this is a schematic diagram of the roof of the fourth ventricle which is given in your anatomy books. So basically this portion which I have shown here is the roof of the fourth ventricle. ठीक है, roof of the fourth ventricle basically looks like a diamond. Fine, इसका जो structure है it basically looks like a diamond shape. Fine, and it is divided into two main parts.
ये जो आपको ब्लूइश पोर्शन दिख रहा है दैट इज द सुपीरियर पार्ट, और ये जो आपको थोड़ा सा ग्रीनिश एंड येलोविश दिख रहा है दैट इज द इंफीरियर मोस्ट पार्ट. फाइन. जो सुपीरियर पार्ट है दैट इज फॉर्म्ड बाय द these portions, superior cerebellar peduncles, एंड जो हमारा ये तुम्हें पार्ट दिख रहा है ब्लूइश पोर्शन विच इज कॉल्ड द सुपीरियर मेडुलरी वेलम. फाइन. जो इंफीरियर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, दैट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द इंफीरियर, this inferior medullary velum. Fine. And this inferior medullary velum, basically the inferior part has a thin sheet which is entirely devoid of the nervous tissue, and this nervous tissue की ये जो sheet होती है, that sheet's continuity is broken by a gap here. ठीक है, यहाँ पे हमारी जो continuity है वो break हो जाती है, ठीक है, by the median aperture which is also known as the foramen of Magendie. Fine. तो बेसिकली मैंने बताया एक सुपीरियर पार्ट है और एक इंफीरियर पार्ट है. ये वाला जो पर्पल पोर्शन है उसको हम सुपीरियर मेडुलरी वेलम कहते हैं. फाइन. एंड जो लोअर मोस्ट पार्ट है उसको इंफीरियर मेडुलरी वेलम कहते हैं. ठीक है. और ये जो इंफीरियर मेडुलरी वेलम है, जो इंफीरियर पार्ट है, उस दैट इज इंटायरली डिवॉइड ऑफ द नर्वस टिश्यू. ठीक है. और एक थिन शीट होती है. दिस थिन शीट की कॉन्टिन्यूटी जो है दैट इज ब्रोकन डाउन हियर ऑनटू अ पोर्शन कॉल्ड द मीडियन एपर्चर. फाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द rest parts, which is most important part, the tila choroidea. So basically, what is tila choroidea? Basically, यार जो हमारी टीला choroidea है that is a pyomatter, layer of pyomatter है, double layer होती है, thick layer of pyomatter होती है. Fine. Tila choroidea which is present between the cerebellum and the lower part of the ventricle. Fine. अब जो हमें ऐसे स्पाइरल पोर्शंस दिख रहे हैं हमारे डायग्राम के अंदर, जो हमारा बेसिकली टी शेप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, दोज आर बेसिकली द टीला कोरॉइडिया एंड द वैस्कुलर फ्रिंजेस जो आपस में कोरॉइड प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं. सो दीज आर बेसिकली द टीला कोरॉइडिया. सो टीला कोरॉइडिया बेसिकली यार हमारा जो सेरिबेलम होता है और वेंट्रिकल जो है उसके जो विद इन प्रेजेंट होता है, जो बिटवीन प्रेजेंट स्ट्रक्चर होता है दैट इज टीला कोरॉइडिया. ठीक है. अब ये जो आपको इतना लंबा पोर्शन दिख रहा है दैट इज बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो टीला कोरॉइडिया है और जो हमारे वैस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है, वो आपस में स्पाइरल डाउन होकर मिक्स होके, ठीक है, दे फॉर्म द कोरॉइड प्लेक्सेस जो हमारा अपर मोस्ट पार्ट में एक्सटेंड हो रही है लैटरली टुवर्ड्स द लेटरल रिसेस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. लैटरली एक्सटेंड हो रहे हैं और हमारा डाउनवर्डली दे एक्सटेंड इनटू द मीडियन एपर्चर. फाइन. तो दीज आर आर कोरॉइड प्लेक्सेस. नाउ अगर हम बात करें तो कोरॉइड प्लेक्सेस इज अ बेसिकली टी शेप स्ट्रक्चर जो लैटरली हमारा लेटरल सल्कस में जा रहा था, ठीक है, और जो जिसके हॉरिजॉन्टल लिम्ब्स यू कैन से आर गोइंग इनटू द लेटरल सल्कस, एंड जो हमारा वर्टिकल लिम्ब है दैट गोज इनटू द एंड्स इनटू द मीडियन अपर्चर. फाइन. दिस इज बेसिकली द टीला कोरॉइडिया. सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम यू कैन सी टीला कोरॉइडिया इज हेयर, ठीक है, जो हमारे सेरिबेलम, फाइन, और जो हमारा जो ये फोर्थ वेंट्रिकल है उसके विद इन उसके बीच में प्रेजेंट होता है. दिस इज बेसिकली द टीला कोरॉइडिया. फाइन. नाउ टॉकिंग अबाउट द ओपनिंग्स. सो हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली हमारे तीन ओपनिंग्स हैं. देयर आर थ्री मेजर ओपनिंग्स जो प्रेजेंट होती है हमारे फोर्थ वेंट्रिकल में. एक होती है हमारी मीडियन ओपनिंग एंड देयर आर टू लेटरल ओपनिंग्स. फाइन. जो हमारी मीडियन ओपनिंग है, अब ओपनिंग्स बेसिकली क्या है, ये हमारी ओपनिंग्स है. फाइन. ये हमारी ओपनिंग्स है, ये वाली जो दो तुम्हें दिख रही है, इस वाली साइड और तुम्हारी ये वाली साइड. ठीक है. अब ये जो दो तुम्हारी ओपनिंग्स है, आई टोल्ड यू, एक तुम्हारी मीडियन ओपनिंग है. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द मीडियन एपर्चर विच इज नोन एज द फोरामेन ऑफ मेगेंडी. फाइन. एक तुम्हारी मीडियन ओपनिंग है जो तुम्हारी मीडियन एपर्चर में जाके ओपन हो रही है, और दो तुम्हारी ऐसी लैटरल ओपनिंग्स होती है. दिस इज कॉल्ड द लेटरल अपर्चर विच इज कॉल्ड द फोरामेन ऑफ लश्का. फाइन. ये तुम्हारी थ्री ओपनिंग्स होती हैं which are present in the roof of your fourth ventricle. Now coming on to the angles. तो हमारे बेसिकली एंगल्स जो है दैट आर थ्री एंगल्स. फाइन. एक ये तुमने स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, तुम्हारा टीला कोरॉइडिया यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और ये तुम्हारा फोर्थ वेंट्रिकल है और पीछे पोस्टीरियरली तुम्हारा सेरिबेलम प्रेजेंट है. तो तुम्हारे तीन एंगल्स बनते हैं. एक सुपीरियर एंगल बनता है, एक यहाँ पे जो सेरिबेलम और तुम्हारा फोर्थ वेंट्रिकल के साथ है दैट इज द लेटरल एंगल, और तुम्हारा एक इंफीरियरली बनता है, दिस इज कॉल्ड द इंफीरियर एंगल. दिस पार्ट
ये जहां पे मेरा पॉइंटर है, विच इज इन कॉन्टिन्यूटी विद द सेरिब्रल एक्विडक्ट, दिस इज योर सुपीरियर एंगल, दिस इज योर लेटरल एंगल, ठीक है, एंड द inferior most part is your inferior angle, ठीक है, which is in continuity with your central canal, ठीक है। ऊपर वाला एंगल तुम्हारा सेरिब्रल एक्विडक्ट के साथ इन कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, एंड जो इंफीरियर एंगल है दैट इज इन कॉन्टिन्यूटी विद योर सेंट्रल केनाल, और जो तुम्हारा लेटरल एंगल है वो यहाँ पे फॉर्म होता है तुम्हारे वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल और तुम्हारा जो सेरिबेलम है उसके बीच में यहाँ पे, और जो तुम्हारा लेटरल एंगल है दैट इज in continuity with your inferior cerebellar peduncles. Now talking about the last part of our fourth ventricle, which are the recesses. I told you before in third ventricle also that हमारे जो recesses हैं, these are basically the extensions of the cavity. Fine. तो recesses basically क्या है, जो cavity की extensions form हो रही है। तो हमारे total 5 major recesses हैं, and this diagram which I have drawn, you have to draw it in your exams also. It is given in your anatomy books as well. 5 recesses हैं, 2 हमारी lateral recesses होती हैं, fine, which I told you in the diagram, ये हमारी lateral recesses थी, ठीक है। एक हमारी जो मीडियन अपर्चर की लाइन में फॉल करती है, मीडियन रिसेस होती है, ठीक है, और मीडियन रिसेसेस के साथ ही हमारे 2 और रिसेसेस हैं, which are the lateral dorsal recesses. If I show it with the help of a diagram, तो ये तुम्हारे जो मीडियन लाइन में फॉल हो रहा था, ये तुम्हारा मीडियन रिसेस हो जाएगा, ठीक है, मीडियन अपर्चर की लाइन में मीडियन रिसेस, और ये जो तुम स्पेस देख रहे हो जो लैटरली तुम्हारे करोइड प्लेक्सस जा रहे थे जहां, दैट वाज द लेटरल रिसेस, फाइन। एंड दो तुम्हारे सुपीरियरली सॉरी, दो तुम्हारे लेटरल डॉर्सल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, ये वाले। So this was all about the fourth ventricle of brain. Hope you liked my video. If you like my video, press a thumbs up and share my videos. Do wait for my next upcoming videos. Thank you. Have a nice day.